Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alivaid and you are on the channel of Medicare. So as you know that we have started the pathology and we have covered the first chapter and all the last topic that we have covered about the last chapter was our cell injury. We discuss all the types, all the mechanism of cell injury, and the cell injury is occurring through two ways. It has two types, necrosis and apoptosis, which occur, and one is the programmed cell death, another is the other one. So we have covered all of these things in very close detail. Now we are going to start a next chapter from the book of pathology basic rubens, and this chapter number 3. Name is inflammation and repair. So we are going to start this chapter from this book. We are covering everything from it. First I will make all these things understandable to you, easy to you. In this chapter you will study about the inflammation, its overview, general feature. Then we discuss the causes of inflammation, how you will recognize your microbe or damaged cell. Then you start the acute inflammation. So my target for today is that I will cover these topics to you. In the next lecture we will start the detail of sorry acute inflammation. So we divide this chapter into several halves and cover it, but the main purpose is to make it understandable to you, is to make it easy for you and also memorize it. So this is the only YouTube channel where you will get the opportunity not only getting the concept but remembering it also. So I will promise you that at the end of this video you not only understand this chapter or this topic, you also memorize it, you also remember it in your mind. So let's start our lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. So first of all we are going to see what is inflammation, what is the definition of it. So how you think we should define the inflammation? So first, the major thing that you heard about the inflammation is that it is a protective response, it is not harmful. This inflammation will become harmful when it become chronic one, but the inflammation is always occur in our body by its own self. Our body its own start the inflammation by using immune cells, and it is a protective response. Protective response. So it means your inflammation is helping you, not damaging your body. And as you study the inflammation, you came to know that the last step of inflammation is repairing, is healing. So healing is also the part of inflammation. First, the body produces the inflammation, activate your immune cells, activate your immunity, and then it also prepare your body to repair it, to heal that injury. So this whole process is our protective. And what the things are involved in the inflammation? So the first line of the definition is that inflammation is a protective response that is produced by your body, and your inflammation involves several things. So the first thing that is a part of our inflammation is our immune cells, the cells which are produced by your own body, like lymphocytes, macrophages, monocytes, neutrophils, eosinophils, basophils. All these white blood cells, all these red blood cells, they are your immune cells. Then the next thing that involves in the inflammation is your blood vessels. You will see how blood vessels are the part of inflammation, because whenever the inflammation occur, your blood vessels undergo a dilation process. They dilate, increase the blood flow at the site of injury, and these things happens. So that's why blood vessel is also the major part of inflammation. And the next thing is your body proteins. A lot of proteins are present in your body that activates when the inflammation occur. Otherwise, they are inactive form. But whenever the inflammation occur, they become activated, and they produce several kind of changes in your body. And the last thing is that some mediators. Inflammation also
regulates the secretion of some mediators, and so mediators play important role in the inflammation. In this chapter we will also study the major inflammatory mediators, and we will discuss all the mediators, whether they are the part of acute inflammation or whether they are the part of chronic one. We will discuss all these kind of mediators. And what is the major function of your inflammation? It's so the major function, why the inflammation or why it is beneficial for us. So the major function of your inflammation, first, to kill that disease causing agent. I can say it a microbe, because always a microbe, any kind of toxins are producing any kind of injury. So first, the purpose of your inflammation is to kill that particular disease causing agent. And the second most important function that a inflammation do is to do healing, is to repairing, which is the most important function, and our body needs it. So that's why the inflammation is very very important, and you have to learn that. So simply, this is your definition of inflammation, this whole thing that I have told you. First line is, inflammation is a protective response that is produced by your body, and inflammation involves your immune cells, your blood vessel, your proteins, your mediators. And the major function of your inflammation is to kill disease causing agents and to heal or repair that injury site. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स. कभी भी आपसे वाइवा में पूछा जाता है या कहीं पर भी आपसे इन्फ्लेमेशन के बारे में पूछा जाता है, और अगर आप उसकी डेफिनेशन में ये सब चीज़ें बोलते हैं, दैट्स द गुड वन. तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे, ये बिल्कुल ठीक है, आप ये चीज़ें बोल सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ तक हमने देख लिया कि इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया कि हेलो हाय कर ली कि इन्फ्लेमेशन में हो क्या रहा है. ठीक है. अब कुछ और चीज़ें भी हैं जो इन्फ्लेमेशन के अंदर हो रही हैं. मतलब फंक्शन उसका तो यही हो गया ना कि मेजर उसने माइक्रोब्स या टॉक्सिन को किल करना है, हार्मफुल जितने भी सेल्स हैं उन्हें किल करना है. इसके अलावा कुछ मेडिएटर्स अपने डिफेंस के लिए कुछ मेडिएटर्स ये रिलीज़ करता है, जैसे जिसमें फैगोसाइटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज़, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ जाती हैं. फिर हीलिंग या रिपेयर को ये कर रहा है, और आल्सो हील द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंजरी. ठीक है. हील ये करता है कि एक इंजरी हुई, उसके एंड में जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि मतलब टिश्यू डैमेज हो गया या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो उसे भी ये हील कर रहा होता है. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं. अब मेजर हम लोग देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन्फ्लेमेशन कैन बी एक्यूट और कैन बी क्रॉनिक. सो हम देखेंगे कि एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का डिफरेंस क्या है, किस बेस पे इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस आता है. और फिर हम लोगों ने एक्यूट और क्रॉनिक को अलग-अलग भी सेपरेटली तौर पे भी हम डिटेल से इसमें बात करेंगे. ठीक है. सो चलते हैं जी एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के डिफरेंस पर. अच्छा बच्चों, अब बात करें. नाउ वी आर गोना टू स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन द acute and chronic inflammation. The first major thing that you have to, I have make the headings of all the differences. So the first major heading is their definition. First of all, you have to define acute inflammation and the chronic one. So acute inflammation, it is always a initial. ये किस तरह का, ये भी रिस्पॉन्स है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है. इसमें भी पहली चीज़ आप ये लिख सकते हैं दैट इट इज़ द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स. लेकिन इस रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें हैं, और एक सबसे पहले ये इनिशियल है, सबसे पहला. इनिशियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहला. मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन सबसे पहला रिस्पॉन्स है, सबसे पहला प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है. और ये सिर्फ इनिशियल नहीं है, बल्कि एक रैपिड रिस्पॉन्स है जो जल्दी से हो जाता है. क्रॉनिक जल्दी कभी भी नहीं होगा. ठीक है. एक्यूट है तो मतलब ड्यूरेशन कम है और ये जल्दी से हो जाएगा. क्रॉनिक आहिस्ता आहिस्ता होगा, और वो क्रॉनिक जो है वो प्रोलॉन्ग लंबे अरसे तक रहता है, उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है. एक्यूट का ट्रीटमेंट है, क्रॉनिक का ट्रीटमेंट नहीं है. सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. सो एक्यूट की बात ये हो गई डैट इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, इट इज़ द इनिशियल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, एंड इट इज़ अ रैपिड रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन एंड द टिश्यू डैमेज. तो ये रिस्पॉन्स होगा किसके अगेंस्ट, जब भी कोई टिश्यू डैमेज होगा.
उसके रिस्पॉन्स में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। या कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ होगा। हमेशा इन्फ्लेमेशन होती ही तब है जब हमें इन्फेक्शन हुआ हुआ होता है या हमारा टिश्यू डैमेज हुआ हुआ होता है। उसके रिस्पॉन्स में जो इनिशियल और रैपिड रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देगी उसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं क्रॉनिक की। तो ये भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तब होगी जब ये इनिशियल रिस्पॉन्स फेल हो जाएगा। अगर ये फेल हो गया तो क्रॉनिक स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर इनिशियल ये जो रिस्पॉन्स है अगर ये फेल हो जाता है, अपना सही तरह से काम नहीं कर पाता है, टिश्यू डैमेज या इन्फेक्शन के जो माइक्रोब्स हैं उसे किल नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मतलब इन्फेक्शन अगर कोई तगड़ा जरासीम ने आके इन्फेक्शन किया है तो उसे मारना भी मुश्किल होगा। और अगर आपकी बॉडी उसे नहीं मार पाती है, फेल हो जाती है उसे मारने में, तो फिर वो क्रोनिक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इनिशियल रिस्पॉन्स फेल हो गया और रिएक्शन हमारा ये प्रोग्रेस होता रहेगा। टिश्यू डैमेज, इन्फेक्शन, ये प्रोग्रेस होते रहेंगे क्योंकि अब उस जरासीम को मारने वाला कोई नहीं है, वो बदतमीज़ी करता रहेगा। और क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ती जाएगी और वो क्रोनिक हो जाएगी। इसे कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइंड द acute inflammation that it is a protective initial and a rapid response occurs against the tissue damage or the infection. Chronic occurs when your initial response is failed and the tissue damage and your infection progress and it become result into the chronic inflammation. So ये सबसे पहले definition हम लोगों ने देख ली। Next difference is depending upon their duration or their onset, you can say it. So acute, its word indicate that it will develop within a few minutes to hours, mean its onset is few minutes to maximum time can be of hours. Okay, and it lasts for several hours to days, and its duration is it lasts for several hours to days. Okay, next, the onset of chronic is that it develops very slowly, it takes some days to develop, and its duration is that it remains several months. Okay, so the onset of acute is from minutes to some hours, but chronic take the onset of some days, not hours, some days it can take. And the duration of acute is from any hours to days, but the chronic duration is from months. And if it progress more, it will becomes for several year, and sometimes the inflammation become for the lifetime. So that's why the duration of chronic inflammation depends upon the several factors. It depends upon the tissue damage or the infection. If we have an extreme dangerous level of tissue injury, then it is not possible to treat the chronic inflammation within a month. It will take several years and may be possible for the lifetime. Okay, so the next difference between the acute and chronic is the cellular filtration. Always remember, whenever the inflammation occur, the infiltration occur. फिल्ट्रेशन, यहाँ पर टी भी आएगा, ठीक है, तो स्पेलिंग आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि एक्चुअली व्हेनेवर द इन्फ्लेमेशन अकर, a lot of kind of white blood cell and our immune cell, they enter inside the cell and to protect or to kill that microbe. So the major white blood cell that infiltrate into the cell during the acute inflammation is our neutrophils. So these are the major cells that infiltrate in case of acute inflammation, but whenever we have chronic one, then the cell change. Here our monocytes, or we can say macrophages, because monocytes matures to become macrophages. And the second cell that can infiltrate in case of chronic is the lymphocytes, B or T cells, we can say it.
but neutrophils infiltrate during the acute. Okay, so the last difference between the acute and the chronic is about their local and systematic signs. Local or systemic signs. So acute inflammation signs are more prominent, more you can say visible, while the signs of chronic they are very less, because chronic occurs and it doesn't like the cancer one. So the cancer initially it has no symptoms, but when it reaches to the last end stage, then it shows its symptoms. And when the patient check by the doctor, and the doctor said that the patient is on the third and the last stage of cancer. So that's why the chronic inflammation they have majority of less symptoms. That's why we cannot easily detect it. But acute inflammation they have very prominent signs. We can detect that this patient and has body has any acute inflammation. So okay, so I am gonna to raise this acute or chronic inflammation topic, and I am going to ask you to revise the things that we have studied till now. Okay, so the first thing we have see is the definition of inflammation, that the inflammation is a protective response that is occur inside your body, and it involves immune cells, your blood vessels, your proteins, and some mediators. And last thing is the major function of your inflammation is to protect your body, is to kill that microbe and toxins, and is to eliminate the harmful cells. And it also play important role in healing and repair of your body. Next thing we have see inflammation as two types, acute and chronic. Acute inflammation is a protective response. It is an initial response, and it is a what rapid response, okay, against the tissue damage or infection. But whenever our initial response fails, and the tissue damage and your infection progress and prolong, then it converts the inflammation into the chronic state. Okay, next difference is depending upon their duration and their onset. So the onset of your acute inflammation is from minutes to hours, and its duration is from hours to some days. And the onset of action of your chronic is it can take some days, and it can its duration is still several months, can be several years, and can be lifetime. Okay, next difference is the cellular infiltration. Cellular infiltration in case of acute inflammation, it is, please tell me. Yes, neutrophil. You remember it very well. And what cellular infiltrate consists of when we have chronic inflammation? Yes, you are right. Majorly macrophages and your lymphocytes. Good one. And can you remember the last difference that we have studied between the acute and the chronic inflammation? Yes, we have observed the sign and symptoms. Sign and symptoms are they prominent or less in acute inflammation? Yes, they are prominent here. And in case of chronic, what the signs you will observe? Yes, we have very less signs in case of chronic inflammation. Very good. So, after discussing all of these things, I am going to start the causes of inflammation. So why the inflammation is occurring? The most common cause that you will know about it is your infection. Due to infection, always the inflammation starts. An infection occur due to microbe, and inflammation is due to any kind of microbe, or you can say some toxin. Okay, and microbe can be viral, bacterial, fungal, and some parasites, you can say. So it's called mild acute inflammation. So always the infection cause the inflammation. The second major cause of your inflammation is tissue necrosis. टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस हो गया, ठीक है, यानी सेल की डेथ हो गई है, या आप इसे सिंपल वर्ड्स में टिश्यू डैमेज भी कह सकते हैं,
कि टिश्यू डैमेज हो गया। हमने इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन पे भी ये देखा था कि या तो इन्फेक्शन हो रहा है या टिश्यू डैमेज हो रहा है। तो एक टिश्यू क्यों डैमेज होगा, कुछ ना कुछ तो उस टिश्यू के साथ होगा ना कि दैट विल रिजल्ट इन टू इट्स डैमेज और इट्स डेथ। सो कुछ ना कुछ तो होगा। एक इंसान भी जब मरता है ना तो कुछ ना कुछ वजह बनती है, बुखार हो गया, कुछ हो गया, कैंसर हो गया, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है ना, फिर इंसान की डेथ होती है। इस तरह से नहीं होता कि बिल्कुल ठीक इंसान ही हंसता बसता इस दुनिया से चला जाए। इसी तरह एक टिश्यू की डेथ भी बिल्कुल इसी तरह है, कोई ना कोई वजह इसके पीछे बनती है। अब टिश्यू के डेथ के पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं, कोई जहन लड़ाएं अपना, ब्लड सप्लाई ना हो, ब्लड सप्लाई कम हो, उस केस को क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं, कि ब्लड नहीं गया सही तरह से टिश्यू के पास। तो जब ब्लड, यानी ब्लड समझ लें टिश्यू की फूड है, जिस तरह हम इंसान फूड खाते हैं तो उसके साथ हमारा गुजारा होता है। मैं आपके ऊपर खाना बंद कर दूँ, खाना ना खाने दूँ आपको, ज़िंदा रहेंगे आप? नहीं रह सकते, ठीक है ना। कोई 2-4 1 हफ्ता ज़िंदा रह लेंगे, उसके बाद आपको खाना चाहिए। इसी तरह अगर आप टिश्यू की खुराक उस पर बंद करेंगे, टिश्यू के लिए ब्लड उसकी फूड है, अगर आप टिश्यू का फूड बंद करेंगे तो वो डेथ कर जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा उसका। इसके अलावा कोई ट्रॉमा होता है, कोई स्ट्रेस आपके टिश्यू के ऊपर आता है, तब भी वो डाई कर जाएगा। कोई इंजरी होती है, फिज़िकल या केमिकल इंजरी, कोई कट लग गया, कुछ भी हो गया, कोई जल गई वो जगह, कुछ भी इस तरह का इंजरी की स्पेलिंग ही गलत लिखी है मैंने, चलो हाँ, तो कुछ भी इस तरह का जल जाता है उससे भी हो जाएगी। कोई किसी तरह का केमिकल के से आपका एक्सपोजर हुआ है, कोई इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल था वो आपकी स्किन पे लगा, तो यहाँ के जो टिश्यू हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, नेक्रोसिस के प्रोसेस में चले जाएंगे, ठीक है। तीसरी जो मेजर कॉज है आपकी इन्फ्लेमेशन की, वो आ जाती हैं फॉरेन बॉडीज़, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये हैं कि वो कैरियर जो माइक्रोब को लेके आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं जो माइक्रोब को लेके आ रहे हैं, ये ट्रॉमेटिक टिश्यू इंजरी कॉज करते हैं। कुछ एंडोजीनियस सब्सटेंसेस भी हैं जो इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यूरेट क्रिस्टल्स की, ये गाउट डिज़ीज़ के अंदर ये क्रिस्टल्स होते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल, कोलेस्ट्रॉल के जो क्रिस्टल्स हैं वो किस डिजीज़ में आते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर। तो अब एक इस क्रिस्टल की वजह से हमें ये इन्फ्लेमेशन हो गई। गोआउट भी एक इन्फ्लेमेशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक इन्फ्लेमेशन है। सो आपको ये यूरेट, ये कोलेस्ट्रॉल, ये क्या आया, बाहर से आया। कोलेस्ट्रॉल आपके फूड से आ रहा होता है, ठीक है। अगर आपको पता हो कि जो हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। सो वहाँ से कोलेस्ट्रॉल आया और उसने हमें एथेरोस्क्लेरोसिस कर दिया, हमारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर दी। और इसी तरह गाउट डिजीज़ के अंदर यूरेट क्रिस्टल्स आते हैं और वो आपको गाउट की इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। चौथी कॉज जो इन्फ्लेमेशन की है वो आ जाती है इम्यून रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, ये सारे भी इन्फ्लेमेशन का पार्ट है, इन्फ्लेमेशन ही है। सो हाइपर सेंसिटिव हुई, एलर्जी हुई, या कोई ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर हुए। और ये इम्यून रिएक्शन क्यों होते हैं, एंटीजेंस की वजह से। बाहर से कोई एंटीजन आया और उसकी वजह से हो गया, ठीक है। एंटीजन और कुछ नहीं है, वो यही है, यही माइक्रोब्स हैं, यही टॉक्सिन है। लेकिन जब इम्यून रिएक्शन होता है तब उसको नाम हम जो है ना वो एंटीजन का दे देते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये थी सारी काजेज़ इन्फ्लेमेशन की, ठीक है। अब मैं करने जा रही हूँ इस सब को रेस, और अब आपने मुझे ज़बानी बताना है। हाँ भाई बताएं, इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन क्या थी, डू यू रिमेंबर इट? यस, हमने बात की प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स which occur and in response to your body, and it involves what components, immune cells, second component proteins, some mediators, and it also consists of what the fourth thing was. Yes, very good, it consists of blood vessels also, and it causes the killing of microbe and the repairing. Acute inflammation, chronic inflammation, उनका हमने डिफरेंस देखा. Then we see causes of inflammation. First cause is your infection, microbes and toxin. Second is the foreign body like the cholesterol crystals and the urate crystals which cause gout and atherosclerosis.
tissue necrosis or tissue damage. And why it is occurring? Because any decrease in the blood supply to any tissue which cause ischemia, any trauma, any stress can kill a tissue. And the third thing is any physical or chemical injury, it also cause the tissue damage. And the last reason is the immune reaction, some kind of allergy, hypersensitivity, autoimmune diseases, they can cause immune reaction, and immune reaction is a inflammation. So we have covered all of these things that are the major thing about it. So major role of your inflammation in your immunity is that the innate immunity, which is a part of your natural body immune response that helps to protect your body. So actually your inflammation is just similar as the innate immunity is. So innate, कोई अगर पूछे कि इन्फ्लेमेशन कौन सी इम्यूनिटी की टाइप में आता है, तो इनेट इम्यूनिटी में इन्फ्लेमेशन आता है। इनेट इम्यूनिटी क्या है कि बॉडी का अपना प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, जो तब होता है जब नेचुरल तौर पे किसी पैथोजन से हमारी बॉडी का एक्सपोजर होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि अगर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इन्फ्लेमेशन अकर हुई है तो उसका मतलब ये है कि हमारा इन्फेक्शन थोड़ा सा सीवियर है। और अगर इन्फ्लेमेशन बहुत प्रोलॉन्ग हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि जो पैथोजन है या माइक्रोब है वो हमारा थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो चुका है, वो बड़ा तगड़ा है और वो ठीक नहीं हो रहा। और अगर मुसलसल इसी तरह से वो किल ना हुआ तो वो हमारी इन्फ्लेमेशन को एक्यूट से क्रॉनिक में बदल देगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन में आ जाती है कि अगर इन्फ्लेमेशन इनअप्रोप्रिएट हो, यानी कोई इम्यून डिजीज़ या कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो, तो उसका रिज़ल्ट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। अब हमारे कुछ ना कार्डिनल साइंस हैं जो आते हैं जब हमें इन्फ्लेमेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्डिनल साइंस के बारे में। एक्सटर्नल तौर पे मैनिफेस्टेशन हो जाती है इन्फ्लेमेशन की। कार्डिनल साइंस, एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि हम इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट कर रहे हैं। सो ये चीज़ आ गई कि आप डायग्नोसिस कैसे करोगे इन्फ्लेमेशन का। किसी पेशेंट आया आपके पास और उसे इन्फ्लेमेशन हुई है तो आप एक्सटर्नली तौर पे उसे देख के कैसे बताओगे कि इसे कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो आप कार्डिनल साइंस देखोगे। अच्छा, कार्डिनल साइंस की मैंने स्पेलिंग थोड़े से जो है ना वो गलत लिखे हैं तो उन्हें ठीक कर लें। सो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन करनी है आपने, एक्सटर्नली तौर पे आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, दैट यू हैव टू सी वेदर इट हैज़ इन्फ्लेमेशन और नॉट। सो आप कार्डिनल साइंस को देखेंगे। अब ये साइंस है क्या क्या? 5 साइंस हैं ये। सबसे पहला जो साइन आ जाता है वो है हीट, मतलब जो एट द प्लेस एट विच द इन्फ्लेमेशन अकर इट विल हीट अप, इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। सो हीट को हम अगर हम लैटिन वर्ड में कहें तो हम इसको कैलोर कहते हैं। सेकंड इज रेडनेस, वो जगह रेड हुई हुई होगी, विच इज़ कॉल्ड रूबर, कैलोर रूबर। थर्ड चीज़ हुई होगी स्वेलिंग, वो जगह ना स्वेल हुई भी होगी, फूली हुई होगी, जिसको हम ट्यूमर कहेंगे। फोर्थ चीज़ होती है कि उस जगह पे आपको पेन होगा, जिसको हम कहते हैं डोलोर। एंड पांचवी चीज़ जो होगी वो होगी लॉस ऑफ फंक्शन। अच्छा, इसकी तरतीब भी यही रहेगी, हीट, फिर रेडनेस, फिर स्वेलिंग और लास्ट में पेन और फिर लॉस ऑफ फंक्शन होगा, जिसको हम फंक्शनैलोलोसिया भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फंशियोलेसा। ठीक है, अब ये जो पहले 4 ये वाले जो हमारे पास कार्डिनल साइंस आ जाते हैं, दे आर डिस्कवर्ड मोर देन 2000 ईयर्स अगो बाय सेल्सियस। और ये जो लास्ट साइन है लॉस ऑफ फंक्शन का, दिस इज डिस्कवर्ड इन द 19th सेंचुरी बाय रुडोल्फ विर्चो, विच इज़ द फादर ऑफ पैथोलॉजी। सो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी डिस्कवरी के बारे में, और ये अक्सर MCQs या वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं। कार्डिनल साइंस तो वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा पूछ लेते हैं। जैसे इन्फ्लेमेशन का टॉपिक उनके दिमाग में आता है ना, तो वो एक्यूट क्रॉनिक का भी इतना नहीं पूछते, इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन इतना नहीं पूछते जितने कार्डिनल साइंस पूछते हैं। फ़ौरन आपसे पूछेंगे तो आपने फट बता देना है। 5 साइंस हैं, हीट, रेडनेस,
swelling, pain, and calor, rubor, tumor, dolor, and loss of function, which is functional loss. Yeah. First four are discovered 2000 years ago by Celsius, and the last one is discovered in the 19th century by the father of pathology, which is Rudolf Virchow. ठीक है, सो ये चीज़ें भी आपको भाई याद हो गई। ठीक है, वाइवा भी देखें आपका साथ ही साथ तैयार हो गया है। और शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तैयार हो गया, इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन आपको तैयार हो गई, फंक्शन क्या इन्फ्लेमेशन का वो आपने देख लिया, काजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो हम लोगों ने देख ली हैं। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड एंड आवर दिस लेक्चर। आई वाज होपिंग दैट वी विल कवर ऑल द थिंग्स here, but we will see some things from your book also. So see your book. So I have opened it. So first they give the overview of you that inflammation is a response of vascularized tissue and the infection and the tissue damage. Same thing they have explained, that bring the cells or your molecules to the defense form, circulation to that site where the inflammation occurs, and eliminated all the harmful offending agents का मतलब है harmful agents, उन्हें eliminate करता है। उसके बाद ये कह रहे हैं जी इन्फ्लेमेशन सजेस्ट अ हार्मफुल रिएक्शन, इट एक्टिवेट्स अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, इट सर्व्स टू गेट रिड ऑफ बोथ इनिशियल कॉज ऑफ इंजरी, कोई भी माइक्रोब हो गया, टॉक्सिन हो गया, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंजरी लाइक द नेक्रोटिक सेल एंड द टिश्यू सेल, मेडिएटर्स ऑफ डिफेंस इसमें रिलीज होते हैं लाइक फैगोसाइटिक सेल, ल्यूकोसाइट्स, एंटीबॉडीज, कम्प्लीमेंट प्रोटीन. Most of these normally circulate in the blood wherever sequestered also cannot damage the normal cells. ठीक है, some of the cells involved in the inflammatory response are reside in the tissue, they like this and अच्छा ये सारी चीज़ें बकवास लिखी हुई हैं, ये सब कुछ आपने काट देना है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब बात कर लेते हैं इस पेज पे। तो उन्होंने कहा हुआ कि टिपिकल इन्फ्लेमेशन रिएक्शन डिवेल्प थ्रू दी स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफेंडिंग एजेंट आता है और वो आपके एक्स्ट्रा वस्कुलर एजेंट के अंदर रिकॉग्नाइज होता है, होस्ट के सेल और मार्क्यूल से रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन उस जगह पे चले जाते हैं और उस ऑफेंडिंग एजेंट को लोकेट कर लेते हैं। फिर ये जो ल्यूकोसाइट्स और प्रोटीन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि उस ऑफेंडिंग मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकें। रिएक्शन हमारा कंट्रोल रहेगा, टर्मिनेटेड रहेगा और एंड में उस डैमेज टिश्यू की रिपेयरिंग हीलिंग हो जाएगी। एक्यूट इन्फ्लेमेशन दो तरह की है, एक्यूट और क्रॉनिक आ गई। एक्यूट इनिशियल है, रैपिड रिस्पॉन्स है टू द इन्फेक्शन और टिश्यू डैमेज और टिपिकली डिवेल्प विद इन द मिनट और आवर्स, वही चीज़ जो मैंने आपको सारी समझाई है। ठीक है, मेन करेक्टरिस्टिक द एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड एंड द प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रीडोमिनली न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं जिन्हें पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको ऑप्शंस में न्यूट्रोफिल्स की बजाय ये वाला ऑप्शन दे देंगे, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, और वो पूछेंगे हाँ जी भाई एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन क्या इसकी होती है पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर की, और आप आगे कहेंगे नहीं होती है, तो आपको मार पड़ेगी। इसलिए ये याद रखने, अपने नोट्स में लिख लें कि पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स उसको हम न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। तो कोई उस तरह से पूछे या इस तरह से पूछते हैं आपको आता हो। व्हेन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन अचीव अ डिजायर्ड रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन द ऑफेंडर्स द रिएक्शन सबसाइड्स रेजिडुअल बट द इनिशियल रिस्पॉन्स फेल्स टू क्लियर. But if the initial response fails to clear the stimuli and the reaction progress to a protective type, it will becomes the chronic inflammation. अच्छा बच्चों, अगली चीज़ जो आपके बुक में की गई है वो इन्होंने ये डायग्राम सी बनाई हुई है। ये देखेंगे आपकी क्या हुआ, नेक्रोटिक टिश्यू थे, माइक्रोब अंदर आया और ये हमारे मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और मैस्ट सेल है। इन्होंने सबसे पहले ना रिकॉग्नाइजेशन करनी है, ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे माइक्रोब को और कुछ मेडिएटर्स रिलीज़ करेंगे, अमाइंस या साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये हमारी ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ये इन्फिल्ट्रेट होंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे, वेसोडाइलेशन हुई होगी और वास्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस बन जाएंगे
और फिर उसके बाद इन्होंने उस माइक्रोब को मारना है। ये जो माइक्रोब अंदर आया था इन्होंने उस माइक्रोब को मार देना है और कुछ साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से फिब्रोब्लास्ट और कोलेजिन और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कुछ प्रोटीन्स कुछ सेल आ जाएंगे जो कि रिपेयरिंग का प्रोसेस करेंगे। सो ये सारा जो है ना ये रिपेयरिंग का प्रोसेस है, ये उसकी क्लीनिंग का प्रोसेस है, ये इंट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस है। सो ये होल पूरा इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज़्म उन्होंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में फॉलो द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो मतलब पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। लॉन्गर ड्यूरेशन होता है क्रोनिक का और ये डिस्ट्रॉय करता है, और इसके अंदर कौन से दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। Inflammation is induced by chemical mediators that are produced in response to the so inflammation हमेशा हमारे ही ऐसे mediators होते हैं, होस्ट सेल के ऐसे mediators होते हैं जो रिलीज़ होते हैं और इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, ये होस्ट सेल हमारे ही सेल के न्यूट्रोफिल्स थे, लिम्फोसाइट्स, ये हमारी ब्लड का पार्ट है, उन्हीं की वजह से माइक्रोब मरा, इन्फ्लेमेशन हुई और फिर एंड में रिपेयरिंग की हमने। ये एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंस बताया हुआ है, बिल्कुल वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं कि यहाँ पर जो एक्यूट के अंदर है ये माइल्ड होता है और ये सेल्फ लिमिटेड होता है, मतलब इसके अंदर लिमिटेशन होती है। सो योर एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज ऑलवेज सेल्फ लिमिटेड, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोरेरी है, खुद ब खुद रुक जाएगा, और ये माइल्ड भी होता है। ठीक है, जबकि अगर आप बात करते हैं क्रोनिक की तो ये हमेशा सवेयर भी होगा और प्रोलॉन्ग भी होगा, सवेयर भी होगा और प्रोग्रेसिव, या आप इसको प्रोलॉन्ग कुछ भी नाम दे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा बच्चों, अब इस वाले पेज पे देख लो क्या लिखा हुआ है। सो ये कह रहे हैं कि इंजर्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन और डैमेज टिश्यू, ये आपको मैक्रोफेजेस को बताएंगे, और मैक्रोफेजेस ये सारी चीज़ें वही चीज़ है जो इधर डायग्राम में बताई हुई है। फिर एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन, इसको कार्डिनल साइन कहते हैं। हीट जैसे कैलोर, लैटिन वर्ड में रेडनेस हो गई, ल्यूबर, स्वेलिंग, ट्यूमर, पेन, डोलर एंड लॉस ऑफ फंक्शन विच इज़ लोसिया। फिर वही चीज़, उनकी डिस्कवरी वही की वही चीज़ें बताई हुई हैं। फिर in some situation the inflammation reaction become the cause of the disease and the dominant feature. For example, inflammation reaction to the infection, लोकल टिश्यू डैमेज हो जाता है, इसके अंदर सिम्टम्स हमें आते हैं, पेन या फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो हैं ये बिकम द क्रॉनिक सेल्स, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, सिरोसिक्लोरोसिस, लंग फिब्रोसिस हो गई, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि दिस इज़ आवर रीजन दैट आवर फार्मेसी अराउंड द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग वो राइडली कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन। सो इसी वजह से इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। इसी तरह डायबिटीज़ टाइप 2, अल्जीमर, इस तरह के कुछ डिजीज़ हैं जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन ही हो रही होती है। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें बकवास हैं। अच्छा बच्चों, आगे देख सकते हो आप लोग कि उन्होंने एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का ज़रा डिफरेंस दिया हुआ है, उसको देख लो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या आ रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, वो सेल की इंजरी में आ रहे हैं। एस्थमा हो गया, एस्थमा में एलर्जी होती है तो एसिडोफिल्स आएंगे, IgE एंटीबॉडी आएंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये इन्फ्लेमेशन है, इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आ गए, मोनोसाइट्स आ गए, कम्प्लीमेंट प्रोटीन, एंटीबॉडीज़ आ गई। शोक होगा तो साइटोकाइंस आ गए। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में देखो लिम्फोसाइट्स और इनका जिक्र है। आर्थराइटिस हुआ, लिम्फोसाइट्स आए, मैक्रोफेजेस आए या एंटीबॉडीज़ आ गई, एंटीबॉडी लिम्फोसाइट से ही बनेंगी। एस्थमा है तो इसिनोफिल्स आ जाएंगी। सो एस्थमा एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी है, क्रॉनिक भी है, ये याद रखना है। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात की तो मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स आ गए। पल्मोनरी फिब्रोसिस की बात की तो उसमें भी मैक्रोफेजेस और फिब्रोब्लास्ट ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, नीचे भी उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि ये लिस्ट दी हुई है, उन्होंने एग्जांपल ऑफ डिजीज़ेस कि वो कौन सी इन्फ्लेमेशन है, कुछ एक्यूट है कुछ क्रॉनिक है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जैसे एस्थमा विच कैन बी प्रेजेंटेड विद द एक्यूट इन्फ्लेमेशन और द क्रॉनिक वन। ठीक है, एंड दीज डिजीज़ आर पैथोजेनेसिस आर डिस्कवर। सो वो उन्होंने एस्थमा की में जब बात करी कि एस्थमा दोनों एक्यूट भी है क्रॉनिक भी है, और बाकी उन्होंने इसकी एग्जांपल्स उन्हें आपको बताई हुई है।
So now you can add the examples of acute inflammation and the chronic one within, within the notes that you will learn. So एक और डिफरेंस जो acute और chronic के अंदर है तो वो आप एग्जाम्पल का बीच में ऐड कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. उसके बाद उन्होंने हमें पास कहा रिकॉल दैट द लिंकोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो कि कैसे आते हैं, बोन मैरो से बनते हैं ये, और फिर उसके बाद ये आते हैं और बॉडी के अंदर हल्दी मिर्च आते हैं. सो इन्फ्लेमेशन इज टर्मिनेटेड व्हेन द ऑफेंडिंग एजेंट इज इम्प्लीमेंटेड. ठीक है. उन्होंने कहा कि इन्फ्लेमेशन हमेशा तब ख़त्म हो जाती है जब हमारा माइक्रोब मर जाता है. ये डिपेंड नहीं है कि वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या क्रॉनिक है. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म हो जाती है जब माइक्रोब मर जाता है. मेजर मसला माइक्रोब का है. माइक्रोब मर गए, इन्फ्लेमेशन भी मर जाएगी. ठीक है. सो द रिएक्शन इवॉल्व्स, मीडिएटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास. लाइफ स्पैन होता है हर चीज़ का. एंटी इन्फ्लेमेटरी आप लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है ना हमेशा चीज़ें देनी है. रिपेयर के अंदर आपके कुछ इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि जो डैमेज हुई हुई चीज़ है उसे हील करते हैं, रिप्लेस करते हैं. रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, स्कारिंग का प्रोसेस होता है. ये चीज़ें हम जब डिस्कस करेंगे जब हम रिपेयरिंग का प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे. कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन के अंदर बिल्कुल वही चीज़ें. सबसे पहले इन्फेक्शन की बात की है, ये सारे माइक्रोब आ गए, टॉक्सिन आ गए, इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी. अगली चीज़ उन्होंने दी है टिश्यू नेक्रोसिस या डैमेज को आप कह सकते हो. कोई भी ब्लड फ्लो कम हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर आपके पास इस्कीमिया होता है जिसमें मायोकार्डियल सेल्स को जो है ना वो सही तरह से ब्लड फ्लो नहीं मिलता, जिसकी वजह से मसल के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं. इसका मतलब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई. ठीक है. कोई ट्रॉमा हो गया, कोई स्ट्रेस आपके ऊपर आया है. ठीक है. नेक्स्ट रीज़न उन्होंने दी हुई है कि कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ, फिज़िकल या केमिकल इंजरी हुई, जैसे थर्मल इंजरी होगी, कोई बर्न हो गया आपका, या आपने एक्सपोज हुए हैं कोई केमिकल, इन्वायरमेंटल केमिकल्स के साथ, इनकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होती है. कुछ फॉरेन बॉडीज़ जैसे कि आप कह सकते हैं दर्द, स्ट्रेंचर्स, स्प्लिंटर्स, ये सारी चीज़ें भी ना ये कैरी करते हैं अक्सर में माइक्रोब को. कुछ एंडोजीनियस सब्सटेंसेस भी जैसे यूरेट क्रिस्टल, ये गाउट की डिजीज़ में आते हैं. कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स ये एथेरोस्क्लेरोसिस में आ जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है ना. सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें, एलर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज़र्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये भी इन्फ्लेमेशन का पार्ट है जो कि मॉर्बिलिटी और मोर्टेलिटी कॉज करते हैं अगर ये प्रसिस्ट रहें और क्रॉनिक हो जाए. अगर इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाए तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया हुआ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइक्रोब और द डैमेज सेल्स, कि किस तरह से हमारा माइक्रोब या कोई भी जब एंटर होता है किस तरह से हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज़ करती है. बिल्कुल सेम चीज़, ये चीज़ आपको पता है कि किस तरह से रिकॉग्नाइज़ होता है. सबसे पहले क्या होगा कि हमारे जो टिश्यू के सेल्स हैं वो उसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं. हमारे डेंड्राइटिक सेल्स, हमारे एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स सबसे पहले आ जाते हैं, जिसके अंदर मैक्रोफेजिस हो गए, मैस्ट सेल हो गया, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, ये सबसे पहले आते हैं और हमारी जो माइक्रोब आया ना उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं. उन्हें पता लग जाता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर से आई है और हमें नुकसान पहुँचाने के लिए आई है. ठीक है. तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हमारी रिकॉग्नाइजेशन होगी माइक्रोब की. तो ये पहला स्टेप है इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्सेस का. सो हम लोग ना पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल स्टेप्स हैं कितने इन्फ्लेमेशन में, टोटल होंगी क्या क्या चीज़ें. सबसे पहले तो यही होगा कि रिकॉग्नाइज होंगे. सो रिकॉग्नाइज होंगे सर्कुलेटिंग प्रोटीन से या कुछ सेलुलर रिसेप्टर से. ठीक है. ठीक है. कुछ सेलुलर रिसेप्टर्स आ गए. कौन कौन से सेलुलर रिसेप्टर्स हैं उन लोगों उन सारे रिसेप्टर्स को देखेंगे. तो ये हम लोग जो चीज़ है ना वो अगले ही लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि द वीडियो इज़ बिकम टू मच लॉन्ग and I hope I have tried my level best to remember everything, and still now I think you have remember all the things, whether it is about the definition of inflammation, the types of inflammation, the causes of inflammation, the mechanism of action of inflammation, and anything. All the things are given here.
So take care. Meet you soon in the next lecture with the next topic. And in the next topic, we will discuss some steps of inflammatory responses. And the first step is the recognition of microbe and the damaged cells. So take care. Meet you soon in the next lecture. Allah Hafiz.